Hello dear students and welcome to study the subject Pharmaceutical Chemistry first. Myself Professor Girish Badgujar from PHGVP Mandals College of Pharmacy Shahada, and topic of this video is acids, bases and buffers, where we will discuss about buffers. The learning outcomes of this session. In this session we will learn about the definition of buffer. We will study various properties of buffers. We will study the classification of buffers with examples. Also, the objective of this session is to study the mode of buffer action. So let us see what are buffers. Buffers क्या होते हैं? So here is the definition of buffer solution. The solution which resists change in pH values are called as buffer solution. ऐसे solutions जो pH को चेंज होने से रोकते हैं, उन solutions को buffer solution ऐसा कहा जाता है. Buffer solution consists of mixture of weak acid and its salt, or a mixture of weak base and its salt. बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं वीक एसिड और उसके सॉल्ट के, या फिर मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट. इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक तो वो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होते हैं, या फिर किसी भी वीक बेस और उसके सॉल्ट के मिक्सचर हो सकते हैं. तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर कहा जाता है. What are various ideal properties of buffer solutions? जो buffer solutions होते हैं उनकी ideal properties क्या होते हैं वो हमको यहाँ पे देखना है. So first, it should have definite pH. कि ये जो buffer solutions होते हैं उनका एक fix pH होता है या फिर होना चाहिए. The pH should not change on keeping or on dilution. कि buffer solution का pH चेंज नहीं होना चाहिए. The pH does not change on addition of small amount of acid or base. कि ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनका pH एसिड या बेस डालने के बाद भी चेंज नहीं होना चाहिए. So these are some ideal properties of buffer solutions. Now what are the types of buffer solutions? Buffers के कौन कौन से प्रकार होते हैं? The first type is acidic buffer solution. It is the solution having mixture of weak acid and its salt of strong base. Acidic buffer solution क्या होते हैं? So it is a mixture having weak acid and its salt of strong base. Weak acid और उसके salt का mixture होता है तो उसे acidic buffer कहा जाता है. Example, mixture of acetic acid and sodium acetate is an example of acidic buffer solution. In this mixture, acetic acid is weak acid and sodium acetate is the salt of acetic acid. Okay. Second type of buffer solution is a basic buffer solution. It is a solution having a mixture of weak base and its salt of strong acid is called as basic buffer solution. For example, mixture of ammonium hydroxide, that is NH4OH, and ammonium chloride, that is NH4Cl. So this is the mixture of weak base, that is ammonium hydroxide, and its salt of strong acid, that is ammonium chloride. Third type of buffer solution is neutral buffer solution. The solution having a mixture of weak acid and weak base is called as neutral buffer solution. ऐसा solution जिसके अंदर weak acid और weak base का mixture होता है, ऐसे buffer solution को हम neutral buffer solution ऐसा कहते हैं. Example is mixture of acetic acid and ammonium hydroxide. तो acetic acid it is a weak acid and ammonium hydroxide is weak base, और इनका जो combination होता है it act as neutral buffer solution.
So these are the types of buffer solutions: acidic buffer solution, basic buffer solution, and neutral buffer solution. Now how buffer acts, that is mode of buffer action. buffers जो होते हैं वो pH को चेंज होने से कैसे रोकते हैं, how they act. So let us discuss mode of action of acidic buffer. पहले हम लोग acidic buffer कैसे एक्शन दिखाते हैं वो देखते हैं. What is acidic buffer? Acidic buffer is the mixture of weak acid and its salt of strong base. ये हमने पहले ही देखा कि acidic buffer क्या होता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड. एसिडिक बफर जो होगा वो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होगा. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं एसिडिक बफर का, विच कंटेन्स मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH एंड इट्स सॉल्ट दैट इज सोडियम एसीटेट. तो ये जो मिक्सचर होगा ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है. अभी इसमें कैसा होगा कि ये जो CH3COONA है दैट इज सोडियम एसीटेट, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जैसे हमने बोला इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हेंस इट कंप्लीटली गेट डिसोसिएट इनटू एसीटेट आयंस. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन हो जाता है इजीली. तो इसका डिसोसिएशन होगा कैसे होगा, इस प्रकार. CH3COONA ऑन डिसोसिएशन forms CH3COO minus ions plus sodium ions. ये जो CH3COO minus ions होते हैं इसे बोला जाता है एसीटेट ions. ओके, thus solution contains high concentration of CH3COOH that is acetic acid and CH3COO minus that is acetate ions. कि हमने एग्जाम्पल लिया है एसिडिक बफर का जिसके अंदर एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट का कॉम्बिनेशन था. इन दोनों में एसिडिक एसिड वीक होता है, वीक एसिड होता है, जिसके कारण उसका डिसोसिएशन नहीं होगा. तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो एसिटिक एसिड हमारे सॉल्यूशन के अंदर रहेगा. अभी ये जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण वो एज इट इज नहीं रहेगा, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा. It will get dissociated into CH3COO minus and sodium ions. तो हमारा जो एसिडिक बफर होगा उसके अंदर अभी तीन चीज़ें हो सकती है. पहली चीज़ होगी एसिटिक एसिड जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इट विल कंटेन CH3COOH, CH3COO minus ions that is acetate ions and sodium ions. ओके, तो ये हो गया हमारा एसिडिक बफर. अभी ये जो एसिडिक बफर होगा ये pH चेंज होने से कैसे रोकेगा वो देखना है हमको. तो वो देखते हैं अभी कि हाउ दिस बफर विल एक्ट. सो इफ अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl इज एडेड. कंसिडर करो कि उस सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl ऐड कर दिया. HCl एसिडिक होने के कारण वो जो सॉल्यूशन है उसका pH चेंज होना चाहिए था. ओके, एसिड डालने के बाद उसका pH एसिडिक होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो देख रहे हैं हम. तो क्या होगा यहाँ पे HCl ऐड करने के बाद इट विल गेट डिसोसिएटेड. स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए उसका डिसोसिएशन होगा. डिसोसिएशन कैसे होगा वो हम लोग जानते हैं. HCl इट विल डिसोसिएटेड इनटू H+ आयंस एंड Cl- आयंस. H+ और Cl- आयंस बन जाएंगे. दीज H+ आयंस कंबाइंस विद एसीटेट आयंस. अभी ये जो H+ आयंस बने हुए हैं ये CH3COO माइनस आयंस जो पहले से ही सॉल्यूशन में बने हैं उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड. उससे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा इस प्रकार. H+ प्लस CH3COO माइनस विल प्रोड्यूस CH3COOH. एसिड बन गया. अभी ये वीक एसिड है, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे सॉल्यूशन के अंदर. तो HCl डालने के बाद जो H+ आयंस रिलीज हुए थे जिसके कारण सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए था, राइट. देन these H+ आयंस विल कंबाइन विद these acetate आयंस एंड प्रोड्यूस एसिटिक एसिड. तो इस प्रकार से वी कैन से दैट H+ आयंस फ्रॉम एसिड आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिटेट आयंस. हमने यहाँ पे देखा कि H+ आयंस जो एसिड में से आए थे HCl से वो CH3COO माइनस आयंस ने न्यूट्रलाइज कर दिए
एज अ रिजल्ट देयर इज नो चेंज इन pH ऑफ सोल्यूशन इवन ऑन एडिशन ऑफ एसिड। और इस प्रकार एसिड डालने के बाद HCl डालने के बाद भी उस सोल्यूशन का pH चेंज नहीं होता है। सिमिलरली अगर हमने बेस ऐड किया तो क्या होगा? सपोज एसिडिक बफर सोल्यूशन जो है हमारा, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला सच एज NaOH, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण उसका भी डिसोसिएशन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस Na प्लस एंड OH माइनस आयंस, राइट। अभी OH माइनस आयंस अगर निकलेंगे तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दिस OH माइनस आयंस रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड। अभी ये जो OH माइनस आयंस होते हैं वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट हो जाएंगे विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये जी CH3COOH है, ये कहाँ से आया? तो हमारे एसिडिक बफर सोल्यूशन में ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। एंड आफ्टर रिएक्शन दे विल फॉर्म एसिटेट आयन एंड वाटर। अभी क्या बनेगा देखो, OH माइनस रिएक्ट विद एसिटिक एसिड एंड फॉर्म CH3COO माइनस आयंस एंड H2O। तो OH माइनस चला गया, तो OH माइनस चला गया मतलब अभी वो जो सोल्यूशन है वो बेसिक नहीं होगा। अगर H प्लस बढ़ जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, OH माइनस आयंस बढ़ेंगे तो बेसिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे OH माइनस आयंस भी न्यूट्रलाइज हो गए, राइट। So here we can see that OH minus from base are neutralized by acetic acid. As a result, there is no change in the pH of solution even on addition of base. बेस डालने के बाद भी वो जो OH माइनस आयंस थे बेस के, उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके कारण सॉल्यूशन का pH फिर से कांस्टेंट रहेगा। So from this, what we can say? So from this observation, we have observed that H plus ions from acid are neutralized by acetate ions. As a result, there is no change in the pH of solution even on addition of acid. Similarly, we also observed that OH minus ions from base are neutralized by acetic acid, because of which again there is no change in the pH of solution even on addition of strong base. तो एसिड डालने के बाद भी pH चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो एसिड का H प्लस आयन था उसको न्यूट्रलाइज किया एसिटेट आयंस ने, और बेस डालने के बाद भी उसका pH चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस का जो OH माइनस आयंस थे उसको न्यूट्रलाइज किया एसिटिक एसिड ने। इस तरह से बफर्स का जो pH होता है उसको चेंज होने से रोका जाता है। तो दिस एक्शन इज कॉल्ड एज मोड ऑफ बफर एक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। हियर आर सम क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द आंसर्स। Buffer solution is a solution which, then there are 4 options, that is brings about change in pH of solution, resists the change in pH of solution, turns blue litmus red, and option D all of the above. आपको लिखना है इसका सही जवाब क्या है। Second question, mixture of ammonium hydroxide that is NH4OH and ammonium chloride that is NH4Cl is an example of acidic buffer, neutral buffer, basic buffer and none of the above. करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, दैट एसिडिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ। एसिडिक बफर किस चीज का मिक्सचर होता है? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए और इसका ऑप्शन क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो यहाँ तक हमने बफर्स के बारे में देखा, बफर सॉल्यूशंस के बारे में, उसके टाइप्स और उसकी एक्शन किस तरह से दिखाई जाती है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसका अगला पार्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू।